Good morning, everyone. My name is Kunal Singh, and I am very glad to thank Mr. Sujit sir for giving me this platform to speak in front of you and present my presentation on Digital India. First of all, what is Digital India? Digital India was an initiative taken by Indian government in 2015 to provide high-speed internet connection in rural areas and every citizen of India. The purpose of Digital India mission was to provide digital infrastructure to every citizen in India, governance and services on demand, and digital empowerment to every citizen. Some of the initiatives taken by Indian government, such as DigiLocker, where you can keep your original documents, and it is very accessible and very mobile. You can carry it anywhere, and it is applicable and valid in every government sector. E-hospitals. Now you can get consultancy services online, where you can get your all your reports and every kind of digital treatment by your doctors and professionals online. E-Pathshala has been revolutionized in, especially in COVID era, and Bhim UPI. I am sure everybody is using Bhim UPI to make digital transactions. Some of the objectives taken by Indian government to provide high-speed internet facilities, to provide easy access to common service center in all the locality. Now you don't have to visit your regional blocks to make or create your government based forms, etc. Now I would like to play a video which will summarize all this data in an effective and efficient manner. अंग्रेजों की परंपरा की बदौलत सरकार और जनता के बीच में एक भरोसे की बहुत बड़ी खाई थी और इसलिए समय की मांग थी कि सामान्य मानव की जिंदगी में से सरकार कम होती चली जा रही, सरकार हटती जा रही। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। 1 जुलाई 2015 देश ने देखा एक सपना। Digital India, where high-speed digital highways unite the nation. I dream of a digital India where government is open and governance is transparent. I dream of a digital India where the world looks to India for the next big idea. Before Digital India, हम भाग रहे थे सरकार के पीछे। आज सरकार आ रही है हम तक। Before Digital India, गरीब आदमी के पास बैंक अकाउंट नहीं, मतलब गरीब हमेशा साहूकारों के सहारे। आज 45 करोड़ 72 लाख से अधिक जनधन बैंक खाते खोले गए हैं, जो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की कुल जनसंख्या से भी अधिक। बिफोर डिजिटल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अधिकतर बाहर से इंपोर्ट करता था। आज भारत दुनिया का ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर है और टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट भी करता है। बिफोर डिजिटल इंडिया, इंडिया में ओनली अ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स। आज 70,000 के करीब स्टार्टअप्स भारत में। बिफोर डिजिटल इंडिया, देश में 11 लाख किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर, आज 28 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का जाल। इन 7 सालों में देश ने रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था, तो हम पेंडेमिक को हरा पाए। और दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि आज डिजिटल इंडिया नहीं होता तो? डिजिटल इंडिया है तो आज इज्जत है। किसी के सामने हाथ फैलाए बिना डीबीटी से पूरा का पूरा पैसा सीधा खाते में आता है। सुन लो सरला, आ गई किसान सम्मान की तीसरी किस्त। अगर डिजिलॉकर नहीं होता तो मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे मोबाइल में नहीं होते। भाई साहब, मोबाइल डाटा एक रिचार्ज से भी सस्ता हो गया, तभी तो हमारे बच्चे महामारी में भी घर बैठे पढ़ पाए। 5वीं पास हो चुका है बबलू। उमंग एक है तो 1500 से ज्यादा सरकारी सेवाएं हमारी उंगली को छोड़ पड़े। भला वो जो कोविड ऐप था तो हाथों हाथ टीके लगे। डिजिटल इंडिया 나중에 라이프 세팅이 받아보려니 나빠르게 대부분 브랜드 하기고 디지털 인디아 하간에 고대비 만나고 바라고 있어. 벤시비 아이셔 타비. There was no digital India. Today, mobile phones would not have been made in small towns. There is no dream of a unicorn in Nagaland without digital India. कोरोना महामारी के दौरान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जो मदद मिली ना, उसी ने तो मेरी और मेरे परिवार की जान बचाई। इन 7 सालों में हम लाइन से ऑनलाइन और क्यू से क्यूआर तक आ गए हैं। आज दुनिया के 40% डिजिटल लेन देन अकेले भारत में हो रहे हैं और हम लगातार यूपीआई ट्रांजैक्शंस के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। टेलीमेडिसिन आज गांव गरीब के पास है।
5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विसेज सेंटर्स देश के कोने कोने में ई सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से वन नेशन वन राशन कार्ड का सपना साकार हो रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से हमारा यूथ क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतर करने के सुझाव और इनोवेशन दे रहा है। पहले दुनिया टेक्नोलॉजी बनाती थी, हम इस्तेमाल करते थे। आज हम दुनिया के ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनर है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब भारत का लक्ष्य है 100%। आने वाला डेकेड होगा डेकेड से जुड़े होंगे। हमारी सरकार पूरी तरह से डिजिटल होगी और जो भारत को दुनिया का टेक्नोलॉजी टैलेंट हब बनाएंगे। 2025 तक हम छलांग लगा चुके होंगे $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी की ओर। आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मेरा भी यही सपना है कि भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन हो, हर खेत में ड्रोन हो और हर घर में समृद्धि हो। डिजिटल इंडिया, catalyzing new India's decade. Jai Hind. That's all from my side. Thank you.